बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड वी डिस्कस लास्ट टाइम अबाउट द effect of heat on what effect of heat on nitrates, carbonates and hydrogen carbonates. Hydrogen carbonates are also known as what? Bicarbonates. We discuss as we are moving from top to bottom in a group, stability of a nitrates, carbonates and hydrogen carbonates are increases. Except what? Except lithium. Lithium in this case it is what? It is unstable. It break easily when heat is provided. When it break, it form different compound. In case of a nitrate, it form what? It form lithium nitrate or metal nitrate plus oxygen gas is evolved during a reaction. And in case of a carbonate, it form what? It evolve carbon dioxide plus it form what? Lithium carbonate. And in case of a bicarbonate, it form what? It form water, carbon dioxide and liberate lithium oxide. Then the next topic is about thermal stability. Thermal stability के अंदर again we discuss about three types of a substance. First one is about nitrate, carbonate and bicarbonate. And the thermal stability of these species depends upon the polarizing power. Polarizing power is what? It is the ability of a cation to discharge what? To discharge the upcoming ion, upcoming electron. And polarizing power is dependent upon the density, and density is what? It is equal to charge over size. As we are moving from top to bottom, size of an atom is increases. Why it is increases? Due to addition of extra shell. As a result, density decreases, which means polarizing power decreases when we are moving from top to bottom. As a result, stability increases. And then if we are moving from left to right in a period, charge increases. As a result, density increases, which means polarizing power increases. And the nitrates, carbonates or bicarbonates of group 2 are less stable compared to the group 1 elements. Then about polarizability, it is the property of anion to become distorted by what? By cation. ये तो हमारे पास थी लास्ट टाइम की डिस्कशन। अब आज की टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डेट इज पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि व्हाट इज फेजान रूल। फेजान रूल के अंदर हमने कहा कि अगर हमारे पास पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, सो इस केस में क्या होगा? कोवेलेंट करेक्टर विल बी हाई एंड आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? आयनिक करेक्टर विल गेट रिड्यूस्ड। Same is the case with anion. If anion show higher polarizability and cation show higher polarizing power, then such compound there exists less ionic character and high covalent character. It is what? It is Fejan rule. यहाँ पे हमने स्टॉप किया था पोलराइजेशन को। व्हाट इज पोलराइजेशन? हमने कहा कि जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड के केस में हमारे पास 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? It is bond which is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. The atom which donate electron is termed as cation, and the other one which gain electron is what? It is anion. सो जब हमने कहा कि आपके पास केटायन बन जाता है तो ये क्या करता है कि जो आपके पास दूसरा एटम प्रेजेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होता है वो लूजली बाउंड होता है। सो ये केटायन क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास शेप थी वो स्फेरिकल होनी चाहिए थी, लेकिन शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं हो जाती, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन आयन गेट डिस्टॉर्टेड बाय केटायन। दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी। और इसके रिजल्ट में आपके पास कौन सा करेक्टर आ जाता है? कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है, और आयनिक जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। सो अप टू विच पावर योर कैटायन कैन पोलराइज योर एनायन? इट इज नोन एज व्हाट? पोलराइजिंग पावर। मीन्स आपके कैटायन की जो है, ये जो आपका कैटायन है इसकी कितनी पावर है कि वो एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी रखता है या पोलराइज कर सकता है। इट इज नोन एज व्हाट? पोलराइजिंग पावर। और जितनी जितनी आपके पास पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती जाती है, एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है।
इसी से रिलेटेड हम कुछ टर्म डिस्कस करते हैं। इन विच सिचुएशन योर कैटायन कैन स्ट्रांगली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, कि वो कौन सी सिचुएशन होंगी जिनमें आपका जो कैटायन है, ये जो कैटायन है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा किसको, एनायन के इलेक्ट्रॉन को। सो ये डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले जो है वो आपके पास आ जाते हैं साइज। फर्स्ट केस में कहता है अगर आपके पास साइज ऑफ कैटायन जो है वो स्मॉल होगा, अगर कैटायन का साइज स्मॉल है दे विल शो हाई पोलराइजिंग पावर। If size of a cation is small, it will show what? It will show high polarizing power. एक एटम का साइज ये, दूसरे एटम का साइज कुछ इस तरह से, थर्ड का ये। सो इन तीनों में से किसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी? इसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। अब साइज क्यों स्मॉल है? फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का अगर कंपेयर कर लेते हैं। ग्रुप 1 में हमारे पास सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 1 इलेक्ट्रॉन। लेट इसका साइज ये था। देन हम ग्रुप 2 की तरफ मूव करते हैं। ग्रुप 2 के अंदर क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या है? वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो इसका साइज सोडियम से लार्ज होगा या स्मॉल होगा? सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट टू राइट, तो हमने कहा साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। सो इट मीन्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स की पोलराइजिंग पावर हाई है किससे? ग्रुप 1 एलिमेंट से। इसी तरह से अगर हम टॉप वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, लिथियम कैटायन, इसका साइज स्मॉल, बेरिलियम प्लस, इसका साइज स्मॉल, तो इनकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? पोलराइजिंग पावर हाई होगी। तो जब हमने थर्मल स्टेबिलिटी की बात की कि लिथियम के जो कार्बोनेट हैं, नाइट्रेट हैं, ये आर थर्मली अनस्टेबल। वाई दे आर थर्मली अनस्टेबल? ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। और हाई पोलराइजिंग पावर इनकी क्यों है? ड्यू टू स्मॉल साइज। सो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है? साइज। If size of a cation is large, then it show what? It show low polarizing power. It has very little tendency to attract the electron of anion. Next, about charge. If charge is higher, as a result, polarizing power will also be greater or higher. जो आपके पास चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी आपने पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज चार्ज ओवर साइज रेशो। सो जब आपके पास चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोलराइजिंग पावर। तो चार्ज जब आपके पास ज्यादा होगा, इट मीन्स साइज जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। देखो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हम कहते हैं साइज थोड़ा लार्ज, ग्रुप 2 एलिमेंट का साइज उनसे कम, एंड व्हाट अबाउट ग्रुप 3 एलिमेंट? तो साइज और डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं Na+, ग्रुप 2 में आ गया Mg+2, और ग्रुप 3 के अंदर हमारे पास एग्जांपल किसकी आ जाती है? Al+3 की। तो जो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, या चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होने से साइज में डिक्रीज आ रहा है, एज अ रिजल्ट पोलराइजिंग पावर आपके पास क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। So if the charge is higher, polarizing power will also be higher. Then such compound show what? Such compound will show high ionic character and their show high covalent character, and their ionic character will get reduced. So polarization power depends upon two factors. One is size and other is charge. What is the relation between polarizing power and size? If the size of a cation is small, then it show high polarizing power, and if the charge is higher, then they also show what? High polarizing power. As a result, such compound show what? Such compound show high covalent character, and ionic character will get reduced. Next, anion की property is known as what? Anion की property को बोला जाता है polarizability. What is meant by polarizability? It is the ability of anion to get disturbed by cation. So polarizability का मतलब है who can easily give electron or can easily be distorted by what? Distorted by cation. ये आपका एनायन है। सो कौन सा एनायन है जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा? किसको? कैटायन को। या ऐसा एनायन जो कि इजीली डिस्टर्ब होगा, जो इजीली डिस्टर्ब होगा। तो ये भी हमारे पास दो केसेस आ जाएंगी, दो सिचुएशन आएंगी। वन इज साइज एंड अदर इज चार्ज।
अगर हम साइज की बात करते हैं, इफ द साइज ऑफ एन आयन इज लार्ज देन इट शो व्हाट, इट शो हाई पोलराइजेबिलिटी. If the size of anion is high, it show what? It show high polarizability. कैटाइन का साइज हमने कहा क्या? स्मॉल. एनाइन का साइज देखो जितना ज्यादा लार्ज होता जाएगा, जो साइज लार्ज होता जा रहा है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में देखो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है. सो न्यूक्लियस का होल जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होता जाएगा? सो ये होल डिक्रीज होता जाएगा. एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन उतना ही लूजली बाउंड होगा. सो कैटाइन इसको क्या करेगा? इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सच एटम विल इजीली गेट डिस्टॉर्टेड. हम बात करते हैं आयोडीन और ब्रोमीन की. विच वन हैव हाई साइज? विच वन हैव लार्ज साइज? As you know very well, when we are moving from top to bottom, it is the elements of what? Is this the element of group 7. When we are moving top to bottom, what is the effect of a size? Size is increases. The general trend of size is when we are moving from top to bottom, size of atom increases. तो आपके पास देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. पहले कौन सा एटम आ गया? ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. सो विच वन हैव हायर साइज? तो बॉटम की तरफ साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो आयोडीन का साइज क्या होगा? लार्ज होगा. और ब्रोमीन का साइज क्या होगा? कम होगा. सेम इज द केस विद एनाइन. ब्रोमीन और आयोडीन की जब हम कंपैरिजन करेंगे, ब्रोमीन का साइज लार्ज है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होगी. ये इजीली डिस्टॉर्ट होगा एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू ब्रोमीन. सेम इज द केस विद कंपाउंड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट. ये भी आपके पास क्या है? एनाइनिक स्पीशीज हैं जिनका साइज लार्ज है. सो इनकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी? हाई होगी. ये इजीली डिस्टार्ट होंगे टूवर्ड कैटाइन. नेक्स्ट इज अबाउट चार्ज. इफ anion have high charge then it will have high polarizability. Polarizability mean ability to gain electron ना. ब्रोमीन इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया. आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया. इसी तरह से अगर आप कार्बोनेट देखो तो इनका चार्ज क्या है? -2. इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन. तो जो कहते हैं आपके पास चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन. सो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी कंपेयर टू आयोडीन. क्लियर हो गया? सो दो फैक्टर हैं, वन इज साइज एंड अदर इज चार्ज. साइज जितना आपके पास लार्ज होगा एनाइन का तो उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होगी. और चार्ज जितना हाई होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंगली हाई होगी. सो दोनों फैक्टर्स में क्या रिलेशन आ रहा है? हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है बिटवीन साइज एंड चार्ज. सो इफ चार्ज इज हाई एंड साइज इज आल्सो हाई देन सच कंपाउंड शो हाई पोलराइजेबिलिटी. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन आर फार फ्रॉम ए न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते जाएंगे? न्यूक्लियस से इतना ही दूर होते जाएंगे. सो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? कैटाइन जो है वो इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है. क्लियर हो गया? दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए अबाउट पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी. अभी ये जो हमने डिस्कशन की इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ आयंस. वन इज कैटाइन एंड अदर इज एनाइन. One is what? One is cation and other is anion. So if the size of a cation is small, then it show what? It show have high polarizing power. If the size of anion is small, then it show what? It have low polarizability. अगर एनाइन का साइज स्मॉल है तो ये डाउन को क्या एरो शो कर रही है कि इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी. अगर कैटाइन का साइज लार्ज होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी. ये तो हमने बात की साइज अगर स्मॉल होगा तो क्या कंडीशन होगी. नेक्स्ट अगर साइज लार्ज होगा, कैटाइन का साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही क्या होगी? कम होगी. एनाइन के केस में इफ साइज इज लार्ज
देन पोलराइजेबिलिटी क्या होती जाएगी, पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर होती जाएगी जितना साइज लार्ज होता जाएगा इन केस ऑफ एनाइन। सो बेस्ट कंडीशन क्या है, जहां पे हमारे पास हाई कोवेलेंट करेक्टर आएगा, कैटाइन का साइज स्मॉल, एनाइन का साइज लार्ज होगा, देन सच कंपाउंड शो हाई कोवेलेंट करेक्टर। इस केस में क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन आ रही है कि अगर साइज ऑफ ए कैटाइन इज ग्रेटर और लार्जर एंड साइज ऑफ एनाइन इज वेरी स्मॉल, then such compound show ionic character instead of covalent character. So यहाँ पे आपसे पूछा जाता है which compound show high covalent character. So those compound will show high covalent character if the size of cation is very small and the size of anion is very large. Such compound show high covalent character. And on the other hand, if cation is of larger size and anion is of smaller size, then such compound show ionic character instead of covalent character. And is it possible to show 100% ionic character? तो ये सारी डिस्कशन हमारी रिलेटेड थी फैजान रूल से कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास 100% आयनिक करेक्टर शो नहीं करता, देयर एग्जिस्ट लिटिल बिट कोवेलेंट करेक्टर। देन आपको एग्जांपल दिए विच विल बी द कॉम्बिनेशन इन विच आयनिक कंपाउंड शो हाई चांस टू शो कोवेलेंट करेक्टर। ये आपके पास बेसिकली क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो इनके अंदर हाई कोवेलेंट करेक्टर कब शो होगा, ये इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हाई कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा। उसके लिए हम यही साइज और चार्ज वाले फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा मेटल लिथियम जो है वो सेम है, डिफरेंस हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, हेलोजेंस के अंदर। कैटायन आपका सेम है, लिथियम आपका बेसिकली यहाँ पे कैटायन है, लेकिन दूसरी साइड हेलोजन डिफरेंट है, वन इज क्लोरीन एंड सेकेंड वन इज आयोडीन। आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो आयोडीन का साइज लार्ज है और क्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल। द साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉल एंड द साइज ऑफ आयोडीन जो है वो आपके पास लार्ज है। सो हमने कहा जब हमारे पास कैटाइन का साइज स्मॉल, एनाइन का साइज लार्ज होगा, तो इस केस में हमारे पास ग्रेटर कौन सा करेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर, और आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोवेलेंट करेक्टर तो शो हो रहा है, लेकिन कंपेयर टू लिथियम आयोडाइड कोवेलेंट करेक्टर जो है वो कम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्लोराइड जो क्लोरीन प्रेजेंट है उसका साइज लार्ज है कंपेयर सॉरी स्मॉल है कंपेयर टू आयोडीन। सम अप की तरफ मूव करते हैं। आज हमारी डिस्कशन किससे रिलेटेड थी, ये हमारा जो टॉपिक था इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमारा टॉपिक रिलेटेड था अबाउट पोलराइजेशन पावर। So what is polarization power? It is the power of cation to discharge the electronic cloud of anion. कि हमारे पास कैटाइन की कितनी पावर है कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्चार्ज करने की टेंडेंसी रखता है, या हाउ पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज दी कैटाइन। और जो डिस्चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। The ability or the power of anion to become discharged by cation is known as what, polarizability, and the power of cation to discharge the electronic cloud of anion is termed as what, polarizing power. Is it possible there exists 100% ionic bond? और इसका आंसर हमें किसने दिया, आंसर फैजान रूल के थ्रू हमें मिला कि there exists no 100% ionic bond. What is ionic bond? The bond that is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. As we see in example, there exists not 100% ionic bond. When there exists an ionic bond, they are generated a little bit covalent character. That is, the species or atoms that donate electron to anion, it again try to pull this electron toward itself, because the electron that it donated to the anion is not strongly bound, is not strongly held to the nucleus. It is what, it is loosely bound. As a result, the cation of
metal will try to attract this electron toward itself. So as a result, they are generated little bit covalent character. Although this electron is provided by cation, but still it is trying to what? It is trying to attract this electron, and this power is known as what? This power is known as polarization power. So what is Fejan rule? According to Fejan rule, if polarizing power is high, then there exists what? There exists covalent character. So if the polarizing power of a cation is high plus the polarizability of anion is high, then such compounds show what? Then such compounds show high covalent character. Next is about polarizability. What is polarizability? It is the ability of anion to become discharged. देन हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कौन सी ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसपे पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी विल शो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर. So if the size of anion is very small, then polarization power will be high, and if the size of anion is very large, then polarizability will be high. The next is about charge. If the charge of polarization is high, if the charge of cation is high, then polarization power is also high. And if the charge of polarizability means anion की बात करें, if the charge of anion is high, then polarizability will also be high. Such compound will show what? Such compound will show high covalent character instead of ionic character. ये आपका टॉपिक था जिसको आपने क्या करना है, नोट्स के अंदर भी नोट डाउन करना है, जो आपको नोट्स दिए हुए हैं. यहाँ पे आके हमारा ग्रुप 1 जो है वो एंड हुआ, बल्कि ग्रुप 1 के अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया फ्लेम टेस्ट. इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. और दूसरा जो बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास नोट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, तो फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखो S&P ब्लॉक, तो वो हमारा चैप्टर बुक के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए आपको वो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं. तो जो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं तो वो रजिस्टर के अंदर आप साथ साथ नोट डाउन करो, और उसके साथ जो आपने होमवर्क सेंड करना है, होमवर्क 24 जो आपको डेडलाइन दी हुई है, तो वो वाला होमवर्क आपने सेट करना है जो आपको ऑनलाइन दिया जा रहा था. ऑनलाइन कुछ बच्चे सेंड कर रहे थे लेकिन उनकी फाइल्स ओपन नहीं हो रही थी, तो उसको कोई इशू नहीं है. जिन्होंने सेंड किया, जिन्होंने नहीं भी किया, तो हार्ड फॉर्म के अंदर पेजेस पे आपने किया हुआ है, ये असाइनमेंट पेजेस हैं, ये जैसे भी आपने किया हुआ है, तो वो पेजेस आपने सबमिट कराने हैं. प्लस नोट्स वाला काम आपने मस्ट साथ साथ करना है. अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, तो आप फर्स्ट चैप्टर ही से कंटिन्यू करें. साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है लेक्चर से, तो वो भी साथ साथ नोट डाउन करते जाएं. ओके, थैंक यू. ये तो हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया. अब आ जाते हैं होमवर्क टास्क की तरफ. सो होमवर्क टास्क के अंदर बच्चों आपने क्या करना है, होमवर्क टास्क के अंदर आपने पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी के बीच में जो साइज और चार्ज की रिलेशनशिप है ये आपने बताना है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ ए साइज विद कैटायन विद एनायन, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ ए चार्ज विद कैटायन एंड एनायन. प्लस आपने क्या करना है, जैसे लिथियम आयोडाइड और लिथियम क्लोराइड की आपको एग्जांपल गिवन है. इन दिस कंपाउंड विच शो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, इन विच शो लेस आयनिक कैरेक्टर. सो इस तरह से आपने 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 डिफरेंट कंपाउंड लेने हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे. तो उसके अंदर आपने 2 कंपाउंड को लेके उनके बीच में कंपैरिजन बताना है कि कौन सा जो वो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है और कौन सा जो है वो लेस कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है. सो होमवर्क क्या है, कैटायन और एनायन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, size of effect of size, effect of charge on polarizing power and polarizability, plus 2 example which show the difference, which show the comparison between covalent and ionic character. ये आपने सेंड करनी है, लेकिन कोशिश करना है 7 सिंगल पेज पे ही सेंड हो. ओके, थैंक यू.